Morning, everyone. We are going to start this live, and this is the last live of the year 2024, which I and Dr. Seema are going to take. And thank you so much for each one of you who has posted their question in the Google form, right? Because that is the place from where I'll pick all the questions. So basically, this week's question, we are having a question on PMS symptoms, right? We are having a question on emotional validation, and there's a question how to tackle with the screen time meltdown of my child. So these are the three questions we are going to touch base upon in this live today. I'm just waiting for couple of minutes. So we do have Mrs. Rama with us. And last time, I think we missed. She was about to share some nuggets of wisdom with us, and she was not able to unmute. Um, if you can see us, hear us, Mrs. Rama, do let us know. But I'm loving Mrs. Rama and Sir, how beautifully they are trying to come out of this moment. I love you guys. That's the beauty. That shows, I mean, how we behave in that particular moment. यस मिसेस रमा, जहां से आपने वीडियो ऑन किया है उसके जस्ट साथ में एक वॉल्यूम का बटन है, यू कैन ऑन इट. कृतिका, मे बी इफ यू कैन कनेक्ट एंड हेल्प देम, दैट वुड रियली बी ग्रेट. So guys, we are having till Dr. Seema joins in. I'll take the very first question. uh, So that very first question is from Preeti, and she's asking कि Japinder, आजकल parenting में whenever I join somewhere, there's a lot about emotional validation. So what is your say on emotional validation as from the standpoint of emotional educator for parents? Okay, I'll take up this question. In the meantime, Palak, Dr. Garima, Itisha, there is a Google form. In case you have any question, please post it. Right now, we are having three questions we are going to touch base in this 30 minutes live. One is on PMS, one is on emotional validation, and another is on screen time meltdowns of children where they are facing any issues. So I'll just address this first and foremost question on emotional validation. Thank you, Preeti, so much for posting this question. Maybe you're not live now, but whenever you will be listening to this video, you'll this will help you. So, why this is so common topic, emotional validation? Uh, because this is something many of us, myself included, did not really, readily experience as a children. जब हम बच्चे थे, right? Parents of previous generation did not have that same maybe insights or information, maybe the research we do nowadays about supporting children through their feelings. Particular part, I'm talking about the emotional side of the things, right? जैसे कि टैंट्रम, वह टिपिकली सीन एज कि अटेंशन के लिए टैंट्रम कर रहा है, राइट? एंड एज अ बिग डिस्प्ले ऑफ इमोशंस वर ऑफन नॉट टॉलरेटेड एंड कैटेगराइज एज बैड बिहेवियर. क्या है, क्या चल रहा है, क्या टैंट्रम कर रहा है, क्या नखरे मार रहा है, क्या चाहिए, क्यों जिद कर रहा है, राइट? ऑल दीज, that was all. Now generally speaking, we know a bit more and we tend to think bit differently कि everybody, it's a human need to be feel seen and heard. हमें भी अच्छा लगता है जब हमें फील होता है कि जिससे हम जो कह रहे हैं वो हमें फील कर रहा है, वो हमें देख रहा है और समझ रहा है. I'll give you a very small example, but before that, emotional validation है क्या, right? Essentially, validation is a critical step along the pathway to emotional containment के लिए, इमोशनल रेगुलेशन के लिए और इमोशनल फंक्शनैलिटी के लिए. ये जो वैलिडेशन है, दैट्स अ वेरी 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 क्रिटिकल स्टेप, राइट? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब तक हम उस इमोशन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप कैसे लर्न करोगे उसे मैनेज करना? द वेरी फर्स्ट इज टू एक्नॉलेज जो भी इमोशन है, राइट? आप एक्नॉलेज करोगे यस ये इमोशन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड देन ओनली यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. इसको मैनेज कैसे करना है? यू कांट डायरेक्टली जंप ऑन मैनेजिंग समवन्स एंगर, समवन्स फियर, समवन्स एंजाइटी, राइट? यू वोंट बी एबल टू मैनेज दैट अंटिल यू एक्नॉलेज कि वो है पहली प्लेस पे. And that's basically what validation is. You acknowledging how your child is feeling. Example,
मेरा बच्चा मेरे पास आया, वो मुझे कह रहा है मम्मा मुझे डर लग रहा है। ओके। एंड एज अ, अगर मुझे नहीं पता व्हाट एल्स से, इसमें डरने की क्या बात है? मेरा बच्चा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं मम्मा मुझे कॉकरोच से डर लग रहा है, कॉकरोच कॉकरोच डर लग रहा है, व्हाट एल्स से? क्या है इसमें डरने की? क्या बात है? छोटा सा कॉकरोच ही तो है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेलिंग डरने की क्या बात है। इमोशनल वैलिडेशन इज द फर्स्ट स्टेप। मेरा बच्चा मुझे उस टाइम पे कह रहा है मुझे डर लग रहा है, कैन आई फर्स्ट टेल आई अंडरस्टैंड बच्चा आपको डर लग रहा है, ओके आपको किस चीज से? बिकॉज एज अ पेरेंट आई वॉन्ट टू बी अ सपोर्ट, नॉट अ सॉल्यूशन गिवर ऑल द टाइम। डरो मत। पहले डर को एक्नॉलेज तो कर दूं, मैं वहां पे उसको वैलिडेट तो कर दूं कि मुझे समझ आ रहा है बेटे आपको डर लग रहा है। बिकॉज जैसे ही मैंने ये चीज कही, नाउ माई बच्चा इज थिंकिंग कि ओके, एटलीस्ट मम्मा को समझ तो आ रहा है मुझे डर लग रहा है। नेक्स्ट आई लास्ट हिम, ओके आपको इसको क्या चीज से डर लग रहा था? कलर, ये जैसे फ्लाई करता है। ओके, आई विल नॉट गो बेस्ड ऑन माई थिंग्स टू दैट 4 ईयर और 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड कि इसमें डरने की क्या बात है, छोटी सी तो चीज है। वो डर है, उसका डर इज राइट। आई एम नॉट सेइंग वैलिडेटेड मतलब कि ये सही है या गलत, वैलिडेट इज जस्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट माई चाइल्ड इज सेइंग इन दैट मोमेंट। वो अगर मुझे कह रहा है मुझे डर लग रहा है, मम्मा मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे कुछ भी हो रहा है, ये तो बहुत बड़े वर्ड हो गए, खैर स्ट्रेस हमसे सुन सुन के वो लोग आजकल इतना कॉमनली यूज करने लगे हैं, मे बी उनको स्ट्रेस का मतलब भी ना पता हो। बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज वैलिडेशन इज समथिंग जो मेरा बच्चा मुझे उस मोमेंट में कह रहा है, अपना जो भी इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, मैं उसको बोलूं आई अंडरस्टैंड यू, हाँ मुझे पता लग रहा है बच्चे आपको ऐसा फील हो रहा है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कनेक्शन बिफोर गोइंग टू करेक्शन। सो दैट्स वाई इमोशनल वैलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप हो जाता है टू अंडरस्टैंड इफ यू रियली वांट टू गिव अ गुड इमोशनल रेगुलेशन टू योर चाइल्ड। अब मैं भी किसी को कुछ बोलूं, अपने हस्बैंड को बोलूं, घर पे किसी को बोलूं, और वो मुझे बोलने ले तू ऐसे घबरा रही है, इतने कौन सी घबराने की बात है, ये तो छोटी सी बात है। कि मुझे हो रही है घबराहट उस चीज में, मुझे स्ट्रेस हो रहा है इस चीज का। इमेजिन आप अकेले बैठे हो, एक पार्क है, आप एक पार्क में, आपका बच्चा बैठा है, वो बहुत डरा सहमा है, बहुत बड़ा पार्क है, उस पे एक बेंच है एंड दैट चाइल्ड इज सिटिंग विद देयर इमोशन ऑन दैट बेंच। और हम रैदर देन सिटिंग, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कोई आके इस बेंच पे मेरे साथ बैठे और जस्ट कहे आई एम देयर फॉर यू। एंड दैट इज दिस पार्ट ऑफ वैलिडेशन। तो इफ यू रियली वांट टू हेल्प योर चाइल्ड, स्टार्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट दे आर टेलिंग फर्स्ट, उसके बाद अगले स्टेप पे जाओ to the solution part of it. I hope you got it. So I will give you couple of few phrases, simple phrases to keep in your back pocket जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है। So what simple things you can use, क्योंकि उस मोमेंट में मुझे एज अ मदर नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलूं। मतलब मैं करना चाहती हूँ बट मेरे पास वो टूल नहीं है हाउ टू डू दैट। सो दैट इज वेयर वी हेल्प एज अ पेरेंटिंग कोचेज, एज अ इमोशनल एजुकेटर, कि आपके पास उस टाइम पे होना चाहिए, आप करना चाहते हो। So I'm giving you couple of phrases, guys, which you can, have it, right? So that validation sounds like a practice. You can practice. So अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, so you can tell, I hear you. Yes. Yes, I can tell you, you are really upset. I can see this feels really hard right now. Yes, that does sound tough. I understand. So these are the couple of phrases which will really, really help you, right? I hear you, मतलब आप उसको कह रहे हो ना, you feel like nothing is going right today. I hear you. You feel like आज कुछ भी सही नहीं हो रहा, right? First we couldn't go back to the park and now we are all out of snack, out of the snack you wanted. Yup, I get that. That's really disappointing. I hope in example के साथ you are able to understand what are the phrases you can keep it in your back pocket, how you can help your child. So that is all on emotional validation, Preeti. Thank you so much for posting that question. So I think there is something in the chat box. So yeah, Q&A form is in the chat box, guys. If you can post it there. Then there was another question till Dr. Seema joined, because PMS question is from both medically and emotionally standpoint. So we can check with Dr. Seema quickly. She was telling me she'll be here in a while. In the meantime, I'll pick the another question which was on the screen time struggle. So
Ritika is asking a question. Japinder, can you help me how to manage meltdown when I switch off the screen for my child? Very beautiful question. Meltdown को manage कैसे करना है? So first thing is understand the meltdown part. Briefly, I'll tell you कि वो हो क्यों रहा है, because जब आपको पता होगा कि वो हो क्यों रहा है, you will be in a better situation to manage it. तो क्या हो रहा है कि बच्चा मेरा फोन देख रहा है, मे बी मैंने उसको टाइमर लगाया नहीं लगाया, वॉट एवर। यूजली अगर आपका बच्चा छोटा है, जब तक आप वो लगा सकते हो तो प्लीज आई रिकमेंड यूज यूट्यूब किड्स, और उस पर आप टाइमर लगा देते हो। और जब टाइमर लगा देते हो तो यू आर योर चाइल्ड इज अगेन दिस टेक्नोलॉजी, नॉट यू, राइट? यू बोथ आर ऑन द सेम टीम वर्किंग ऑन द स्क्रीन टाइम। पहले ये समझते हैं कि वो मेल्टडाउन बच्चे का वहां हो क्यों रहा है। नाउ माई चाइल्ड इज इन द स्क्रीन, राइट? दे आर सो एडिक्टिव। वो बहुत देर से कुछ देख रहा है, वो कार्टून देख रहा है, वो वीडियो गेम खेल रहा है, वो कोई शो देख रहा है। नाउ माई चाइल्ड इज इन दैट कैरेक्टर। वो उस टाइम पे उस कैरेक्टर के अंदर है, वो लिव कर रहा है। एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो बहुत ब्यूटीफुल है, जहाँ पे बहुत कुछ बहुत जल्दी 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 आ रहा है, और उसके सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं इन दैट मोमेंट। ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, राइट? दे आर गेटिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब क्या हुआ, इमिडिएटली इफ यू आर लाइक मी, समटाइम्स हम करते हैं ना, किचन में खड़े बंद कर दे, हो गया आधा घंटा, 1 घंटा हो गया देखते हुए फोन। और मैं आई और मैंने आके फटाक से फोन बंद करके साइड रख दिया। मेरा बच्चा वॉज इन अ वेरी कनेक्टेड मोमेंट इन दैट टाइम। वो एक ऐसे वर्ल्ड में था जहाँ पे वो बहुत खुश था एंड वॉज इन कैरेक्टर, उसमें पूरा डूबा हुआ था। और मैं एकदम से आई और मैंने उसको शट डाउन कर दिया। बायोलॉजिकली इट्स अ कंप्लीट शट डाउन गाइस, विच इज नॉट हेल्पफुल फॉर योर चाइल्ड। वॉट यू कैन डू इज नाउ, आई नो वी आर बिजी मॉम्स और ये स्क्रीन टाइम्स हम देते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आई जस्ट एवरी टाइम आई से कि ये मत सोचो कि मैं इसको कंप्लीटली बंद कैसे कर दूं। नो, ऑलवेज थिंक हाउ आई कैन मैनेज स्क्रीन टाइम फॉर माई फैमिली। तो अगर आप, इट्स योर डिसीजन, आप 20 मिनट्स दे रहे हो, 30 मिनट्स दे रहे हो, 1 आवर दे रहे हो, इट्स ऑन यू, यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ। बट वॉट एवर टाइम यू आर गिविंग योर चाइल्ड, उसके बाद वो जो हार्ड पार्ट है, दैट इज उसको बंद करना। क्योंकि आप अपने आप से पूछो, जब आप बिंज कुछ देख रहे हो तो आप घंटों माइंडलेसली वी कैन स्क्रॉल द स्क्रीन। तो मेरा बच्चा उस टाइम पे इज इन दैट मोमेंट, मेंटली, इमोशनली, हर वो उसके अंदर है। नाउ आप, अगर आपने 30 मिनट्स दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 29th मिनट पे आप आओ। 29 मिनट तक अपना जो करना है करो, आपका बच्चा कर रहा है। लास्ट का जो 1 मिनट है, प्लीज डू कम, सिट ऑन द काउच, सिट ऑन द बेड, जहां पे भी आपका बच्चा बैठा उसके सामने बैठो, उसके वर्ल्ड में उसके साथ जाओ। ओके, आप ये कार्टून देख रहे हो, ओ आप ये वीडियो गेम खेल रहे हो, ओके आप प्लेयर 1 हो, ओके सो प्लेयर 2 यहाँ पर। गेट इन टू दैट वर्ल्ड ऑफ योर चाइल्ड, राइट? एंड आस्क, ओके आप क्या देख रहे थे, अरे वाह, आप मुझे बताओगे आपने क्या देखा, वॉट आर वी डूइंग हियर इज, माई चाइल्ड वॉज इन द स्क्रीन। वो एक वर्ल्ड में था, बहुत हैप्पी वर्ल्ड में था। मैं अब जब मैं उसका बंद करूंगी तो वो बिल्कुल अकेला है वहां पे, देर इज नो बडी। वट आई एम डूइंग इज आई एम ब्रिजिंग दैट गैप। मेरे बच्चे के अकेलेपन के लिए आई एम एंटरिंग इन द लास्ट मिनट, आई एम एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ माई चाइल्ड, आई एम होल्डिंग द हैंड ऑफ माई चाइल्ड। के बच्चे, जब हम ये बंद करेंगे उसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं, यू आर वॉकिंग दैट ब्रिज फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दिस वर्ल्ड, रियल लाइफ, रियल लाइफ टू रियल लाइफ। आप अपने बच्चे के साथ उसको लेकर आ रहे हो उस वर्ल्ड। एंड आई बेट यू गाइस, द लास्ट मिनट इज द गेम चेंजर। 29 मिनट तक उसको देखने दो, लास्ट मिनट में उसके साथ जाके बैठो, आपका बच्चा इतना खुश होगा, वो बंद करके आपको इतने एक्साइटिंगली बताने लग जाएगा कि यू नो मम्मा इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। क्योंकि जैसे ही वो बंद हुआ, यू आर देयर विद योर चाइल्ड। So don't just immediately shut down this one thing. I have 10 more things, but this is one thing, अगर आप करना शुरू कर दोगे तो meltdown will decrease like anything. Now you are helping your child to come out of that addictive thing, that world to this world. वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएगा वो बंद कर दे। Another thing is, learn to set healthy boundaries and keep them up, right? Healthy boundaries are one of the biggest tool of parenting. Boundaries are something जो parents, healthy boundary, अब screen time में मैं quickly बताती हूँ because this is a very vast topic. स्क्रीन टाइम में बाउंड्री क्या है? स्क्रीन टाइम में बाउंड्री, मैंने अपने बच्चे को बोला बेटे आधा घंटा आपको फोन मिल रहा है, आधा घंटा आपको टीवी मिल रहा है, जो भी आपने वो बाउंड्री की हुई है। रिक्वेस्ट और बाउंड्री में डिफरेंस है गाइस। रिक्वेस्ट इज, मैंने तुझे बोला ना, रोज तेरे को बोलती रहती हूँ, कितने बार बोलती हूँ बंद कर दे बंद कर दे, कभी नहीं बंद करता।
just requesting that child to switch it off. Switch off is a hard part. नहीं कर पा रहा वो. Please factor in that information कि टीवी स्क्रीन फोन बंद करना एक हार्ड पार्ट है. वो हार्ड है, इसलिए मुझे जब मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ तो इस इंफॉर्मेशन को मुझे अपनी साथ इनकॉर्पोरेट करना. सो व्हाट आई से, हे गाइस, यू आर वाचिंग, ये शो हम वॉच करेंगे 1 घंटे का. हेयर इज द रिमोट. आफ्टर 1 hour आई एम गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू स्विच इट ऑफ. जो स्विच ऑफ वाला है पार्ट, वो अपना काम बच्चे को मत दो, वो ऑलरेडी बहुत हार्ड पार्ट है. सो टेक दैट हार्ड पार्ट विद यू एंड दैट्स अ हेल्दी बाउंड्री. वी आर वाचिंग वन शो एंड वंस दैट शो विल बी ओवर आई एम गोइंग टू कम एंड आई एम गोइंग टू स्विच इट ऑफ. टेक दैट हार्ड पार्ट विद यू. That will really, really help you. I hope I answered that thing for you. So, in case you have any question right now, you can post in the comment box. And I think there is some issue at the that Dr. Seema is not able to join in today. But yes, I can take the question that Kriti has shared. The next question is, how can PMS symptoms of irritation be managed effectively, both medically and emotionally? So, what I'll do right now, I'll not touch base most on medical side of the things because I think Dr. Seema is the best person and expertise in that sense, prescribing anything. But as far as the emotional side is concerned, right? So basically, PMS is premenstrual symptoms, right? अब आपको पता लग जाता है and you can just by observing yourself in that every month you will be able to understand कि क्या क्या मेरे symptoms आना शुरू होते हैं, right? And as it is also mentioned, one of the biggest symptom is irritation, right? जो हमने किया कि irritation आना जो शुरू हो जाती है. First thing is again, जैसे हम पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे थे, validation, right? Because कैसे कैसे symptoms आते हैं, mood swings, फूड क्रेविंग्स कईयों की बढ़ जाती हैं, फिटीक होना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी बहुत होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होना हो जाता है, और हर चीज पे हम लोग थोड़े से रिएक्टिव होना शुरू कर दें. किस टाइप ऑफ, राइट? फर्स्ट एक्नॉलेज दैट टू योरसेल्फ इमोशनली दैट यस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लैंड अप इनटू, और इसकी वजह से ये आ रहा है एंड आई एम फीलिंग राइट नाउ दिस. ओके. एंड यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म पीपल अराउंड यू. हमें क्या होता है, मे बी फ्रॉम द सोसाइटी स्टैंड पॉइंट, या कभी भी हम इस चीज के बारे में खुल के बात नहीं करते. बट आई टेल यू, मोर ओपनली यू कम्युनिकेट. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन जिसको 2 दिन पहले आई स्टार्ट टू गेट ऑल दोस एंड आई मेक पीस विद माई सेल्फ कि ओके देखो, आज अब तेरे 2-3 दिन ऐसे जाने वाले हैं. एंड आई ऑल्सो इन्फॉर्म माई हस्बैंड अबाउट इट. सी, आई एम गोइंग थ्रू दिस माई फेस, please help me out, okay? Please be patient with me. Maybe I lose again and again because I am irritated inside, and I tell beforehand, I also inform that person so that things can be managed better. Now, what at your level? One is, ये तो बाहर का सपोर्ट हो गया. अब अंदर के सपोर्ट के लिए what you can use emotional release techniques, right? बिकॉज वन इज, प्लीज अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो नो मैटर व्हाट, द फिजिकल एक्टिविटी शुड बी वन ऑफ द वेरी 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 प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कैलेंडर. ऑन द टॉप ऑफ इट कुड बी योगा, इट कुड बी अ वॉक, बिकॉज टू रिलीज द मूड इनहैंसिंग एंडोर्फिन्स, राइट? आपको आपके हार्मोन्स के लिए प्लीज, अगर आपको पता है कि मेरे को पीएमएस का सिम्टम्स ऐसे रहते हैं, कोई एक एक्टिविटी अपने फिजिकल रूटीन में जरूर रखिए टू रिलीज अ मूड एनहांसिंग एंडोर्फिन्स. ओके. स्टे हाइड्रेटेड. पानी पीना बहुत भूल जाते हैं हम लोग, राइट? सो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, दिस विल रियली हेल्प यू. प्रायोरिटाइज गुड स्लीप हाइजीन, राइट? क्योंकि क्या होता है, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं. नो, हैव अ गुड स्लीप हाइजीन बिकॉज दैट एक्चुअली हेल्प मूड स्विंग्स को बहुत ज्यादा. हैव अ रूटीन कि अगर मैं 10 बजे सो रही हूँ, ओके, ज्यादा से ज्यादा 10, 5 हो गई, बट यू टेल दैट नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे मैं अपने मूड स्विंग्स बहुत ठीक कर सकती हूँ. Don't do this. Have a good sleep hygiene. That is one thing you can do. Another thing what you can do is, क्या होता है ना, बेसिकली ये चीजें जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसी चीजें ज्यादा क्या बढ़ती है जब हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्टिविटीज आर नॉट इन बैलेंस, राइट? हम वो चीजें नहीं करते जिससे हमें खुशी मिल रही है.
We are only doing things which we should do. So if you're into the PMS thing, one very important thing is start doing the activity which makes you happy. For example, कोई भी ऐसी एक हॉबी पकड़ लीजिए, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, to express bottled up emotions, right? When you do that, that helps you. तो अंदर जो bottled up emotions है ना, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, because those are actually aggravating, वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं. One is normal hormonal things which you are going through in that PMS phase. Acknowledge करो, आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करो, स्पेशली योर हस्बैंड, टेल हिम बिफोर हैंड रादर देन रोज की, क्योंकि एक छोटा सा झगड़ा हुआ नहीं, वो उसको मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देगा जो ऑलरेडी अंदर चल रहा है. Inform them ना. I was not doing this. Last 5 6 years I've started doing this and really life is sorted. Those 2 3 days before that, after that, I just inform कि भाई अब मैं अपने आप को बोलती हूँ, अब मैं स्लो होने वाली हूँ. आई एम चूजिंग टू बी स्लो. I'm choosing this जितना हो रहा है, and I am, you know, less harsh on my own self. Acknowledge करो ना, हो रहा है ना वो, beyond control है. So that is, you can do this small small things. This will really help you. एंड अगेन यू कैन, अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो यू कैन गो फॉर सम अरोमा थेरेपीज, वो कामिंग थेरेपीज. बट आई टेल यू, अगर आप अपने रूटीन में अपना स्लीप, आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी 10 मिनट की, 15 मिनट की, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर, विच फेज यू आर, हाउ स्मॉल इज योर चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स. तो कोई 10 मिनट की चीज, जस्ट टेल योर सेल्फ, उसको अपने वाई से एंकर कर दो, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प माई सेल्फ इन माई PMS. एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वॉक. उसको अपने वाई के साथ एंकरिंग कर दो, ताकि वो हर बार वो आपको उठाए और बोले कि करना है ये. राइट? सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम द इमोशनल स्टैंड पॉइंट. Okay, so I'm happy to take if there are any other questions. And Kritika, maybe post this meeting, we can help Mrs. Rama. We can connect with her, and we can, if we can help her by just sharing in a link and making her help मैंने us with. स्क्रीनशॉट शेयर किया है उनके साथ, मार्क करके that this button she has to click. Yes, because and kudos that at this age also they are so willing, and and a huge respect and gratitude for that, Mrs. Rama. You're hearing, you're able to hear me, because very few people are having that zeal to show up. Come, I'm having a beautiful client of mine. She's same like you. She's 62 years and she was going through a lot of stress. And उन्होंने सब सीखा. She is my one to one and she is working and she is so adorable to me, because आपकी मम्मी की एज के होते हैं और आप उनको देखते हो कि wow, how beautifully and how keen they are to live their life to the fullest, to show up in the meetings, to learn the technology. और हम अभी से कहने लग जाते हैं हाय कुछ नहीं हो रहा. We so easily we can go into that hopeless mode, victim, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता. Learn. These are, Mrs. Rama, Mrs. Satinder, who I was mentioning. These are guys are the inspiration to us. सब कुछ हो सकता है. Just keep trying. Three trees, right? Try, trust. Try तो करो, विश्वास तो रखो, and keep doing. And truth. Try, be true to yourself, and trust. Trust the divine. They will help you. Okay? Try. Be true to yourself and trust the divine. Everything is figure outable. I don't know figure outable is right word or not, but सब कुछ figure out हो सकता है life में. Just show up, take that tiny, miny step, show up in this Insta lives. I know there might be some reason that Dr. Seema is not able to show up today, but definitely, Kriti, we are going to cover this medical part of PMS in the next session of ours in 2025, because this is the last live of this year, guys. So, before closing, I would love to take this opportunity to wish you all a very happy and prosperous new year. One thing I want to request each one of you, ask yourself, what am I going to give to my own self in the year 2025? Don't just make it a flip of 31st से first हो गया. What flip I want in myself, what kind of version I want to be in 2025, right? And another thing you can do is do some gratitude, show some love and gratitude, and release your 2024 with love.
कि जो भी दिया इस साल ने बहुत अच्छा था। जो अच्छा था उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, जो अच्छा नहीं था just reflect what those incidents or situation or people tried to teach me, and how because of them today I'm the better version of my own self. And then plan your 2025. What is not serving me, I'll leave it with 2024. What is serving me, I'll take along. And what are my lessons from 2024? I'm going to implement in my life to make it a better year and one of the most biggest, bestest year for my own self. So, all the very best, guys. Wish you all a happy new year, prosperous new year, lot of blessings, lot of love. And there will be a link when we'll be posting this video on YouTube. Don't forget to check the description. There is a contact number. Anytime maybe you or anybody in your family is struggling from any emotional thing, don't hesitate to reach out. Just take that first step and help yourself and help others. Let's bring this awareness together. Thank you so much for joining this live today. Love you, bless you, take care, and see you in 2025 next Sunday, same time, 11:30 to 12. Do not forget to post your question in the Google form. There will be a form. Please do post your questions in it. Thank you so much. Bye bye for now. See you. Bless you. Thank you so much for joining in, guys.